Welcome students. So we are learning our second chapter of class 11 physics, that is mathematical methods. So in this chapter we were learning about scalar product of two vectors and vector product of two vectors. So that is also known as dot product and cross product. So let's see few examples related to the cross product of the vectors. So our first example is example 2.7. So I will write this one. So the angular momentum, that is angular momentum, is given by L, that is vector R cross vector P, where R is the position vector and P is the linear momentum of the body. If vector R is given, that is 4i plus 6j minus 3k, and vector P is, that is 2i plus 4j minus 5k, then we have to find the vector L. So it's a problem related to the cross product of two vectors. So here you can see we have to find the cross product. So basically we know that vector L is equal to vector R cross vector P. So we have to take the determinant. So here I, j, k, and you can write now. Let's see, for R there is a 4, there is 6, and here is a minus 3, and for P there is 2, 4, and minus 5. Now by the formula of vector product, we know that when we have to take I, for the I you have to multiply 6 by minus 5, that will be minus 30. Okay, so it will be minus 30, then we have to take minus sign, and then we have to multiply 4 by minus 3, so it will be minus 12. Okay, and there will be I. Now it will be, if you are taking here plus, then we have to multiply 6 with 2, so it will be 12 minus, okay, sorry, here you have to take, just a second, see here we have to skip the j column and j row, then we have to multiply 4, so we have to multiply minus 3 with 2, that will be minus 6, and then minus sign will be there, and 4 into minus 5, that will be minus 20. Okay, so here it will be j, and for k there will be 4 into 4, that will be 16 minus 12, and here it will be k. So after writing this we can do the next process. So जो next process है उसमें आप क्या करेंगे? So I will first clear the upper part of this. See here. Now for vector L, you can write here minus 30. This minus minus will be plus, so it will be plus 12i, plus here it will be minus 6 plus 20, minus minus will be plus, and here is a j, plus यहाँ पे हो जाएगा 4k. सो फाइनली माइनस 30 प्लस 12 हो जाएगा माइनस 18i. ओके, प्लस ये माइनस 6 प्लस 20 हो जाएगा 14j, एंड देयर विल बी प्लस 4k. सो दिस इज वेक्टर L. ओके, ये जो हमें वैल्यू मिला है वेक्टर L के लिए मिला है. सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. सो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था. इस तरह से आप जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं. सो लेट्स टेक अनदर वन. ओके, so I will give another problem. So this was the problem from textbook of your 11th standard physics, and let's another problem that is also from your textbook.
Example 2.9. Okay, so example 2.9. So see here, given that is vector p, given vector p is equal to 4i minus j plus 8k, and vector q is equal to 2i minus mj plus 4k. So find m if vector p and vector q have the same direction. First write down this problem clearly. So I will give the hint to how to solve such types of problem. See here. So basically there are two vectors are given, vector p and vector q. ये जो दो वेक्टर हमें दिए हैं उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू फाइंड करनी है. See here, in such a type of problem what we have to do, first write down clearly. So basically whenever two vectors are having the same direction, in case of vector product of two vectors, that time just remember one thing. If vector are given, then you have to understand that if two vectors are having the same direction, then corresponding components must be in the same proportion. So you can, for that you can write px upon qx is equal to py upon qy is equal to pz upon qz. So such process we have to take. And in this problem they have given us vector p का जो वैल्यू था वो क्या था, 4i minus j plus 8k, and for second vector, that is vector q, that is 2i minus mj plus 4k. तो आपको अभी ये कंपेयर करने वैल्यू, px का वैल्यू क्या है 4 है, उस तरह py का वैल्यू क्या है -1 है, और pz का वैल्यू 8 है. तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू. सो दिस विल बी 4/2 and then it will be -1 divided by -m and it will be 8/4. सो नाउ आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन मेंशन किया होगा तब यहाँ पे जो करेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स है, करेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स मीन्स px, qx, py, qy, pz, qz, ये जो करेस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स है मस्ट बी इन द सेम प्रपोर्शन. तो उनका जो प्रपोर्शन सेम होगा, यानी यहाँ पे हम इक्वल्स दिखाएंगे, सब एक ही प्रपोर्शनलिटी में आएंगे. सो यहाँ पे आप यहाँ कंपेयर करेंगे. सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग, सो यू कैन कंपेयर दिस और यू कैन कंपेयर 4/2 with -1 by -m, no problem. So I will compare the last two values. So this will be, so it will be minus minus cancel हो जाएगा, तो 1/m is equal to 8/4. यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 is equal to 8m. So finally I will write on this side. See here. So यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हो जाएगा m is equal to 4 divided by 8 and finally you can write 1/2. So this is our answer. So m is equal to 1/2, ये हमें यहाँ पे आंसर मिला है. सो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था. इस तरह से आप इस टाइप के प्रॉब्लम कर सकते हैं. ओके, सो दिस वन also is from your textbook. Now let's see another problem. So in your textbook
the problem is given. Let's see next one. First I will clear this. In next process, if we are solving some another problem, see here. So here क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ओके, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो अभी हम सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी नंबर 1. डिटरमाइन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B given vector A, that is 2i plus 3j and vector B, that is 3i plus 5j. Okay, so here we can write like this: vector A cross vector B, so that will be 2i plus 3j cross 3i plus 5j. So here you can write, फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 2i से, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इंटू 3i. ओके, नेक्स्ट 2i क्रॉस 5j प्लस 3j क्रॉस 3i plus 3j cross 5j. So now we have to understand some few properties are also there which we learn in our theory classes. So here जब I होगा, I का वैल्यू क्या होता है, I will write here. See here, this one is the property I cross I, J cross J, K cross K का वैल्यू होता है 0 होता है. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप में ये i क्रॉस i जो 2i इंटू 3i है वो मिलेगा, हमें 0 मिलेगा. ओके, देन i क्रॉस यहाँ पे है j, सो i क्रॉस j का वैल्यू होता है k होता है. तो यहाँ पे 2i इंटू 5j ये मिलेगा हमें 10k मिलेगा. ओके, प्लस 10k मिलेगा. लेकिन j क्रॉस i ये उल्टा है, 3j इंटू 3i ये -9k हो जाएगा, -9k हो जाएगा और प्लस आगे आ जाएगा हमें 0. तो यहाँ पे 10k माइनस 9k दैट विल बी k. सो द प्रॉपर्टी हियर फर्स्ट i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 दैट वी यूज. एंड नेक्स्ट वन इज i क्रॉस j के लिए आपको k करना है और j क्रॉस i के लिए -k करना है. ये वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आपको इजी जाएगा. सो लेट्स सी नेक्स्ट वन. सो आई विल क्लियर दिस. फर्स्ट राइट डाउन केयरफुली और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. So from the question number 3 we are solving our next problem. So क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें का सेकंड नंबर का प्रॉब्लम अभी हम देख रहे हैं. शो दैट वेक्टर A is equal to 2i plus 3j plus 6k, 2i plus 3j plus 6k. Vector B is equal to 3i minus 6j plus 2k and vector C is equal to 6i plus 2j minus 3k are perpendicular, are mutually perpendicular. तो ये जो सब वेक्टर है ये हमें
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे प्रूव करना है। सो वी नो दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये जो हमें कंसेप्ट मालूम है, इस कंसेप्ट का भी हम यूज करेंगे। तो पहले हम देखेंगे ए क्रॉस बी का जब हम फाइंड करेंगे, जब वैल्यू 0 आएगा तब हम कहेंगे ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। बाद में हम देखेंगे बी क्रॉस सी का आएगा तब 0 होगा, तो हम कहेंगे ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। और लास्ट में जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का वैल्यू हमें 0 मिलेगा तो हम कहेंगे कि जो तीनों वेक्टर है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट आई विल क्लियर दिस। ओके, see here, very interesting problem. So for this we have to first take the dot product of this वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो यहाँ पे जो वेक्टर a का वैल्यू है वो आपको अच्छी तरह से लिखना है, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 6k, ओके, डॉट 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, सी हियर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जी जब बी होगा तब हम करते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। यू कैन से डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो यूज़ करना है। सी हियर व्हाट हैपन हियर। सो बेसिकली आई विल राइट द आंसर like this. So it will be 2i cross 3i plus 3j cross minus 6j प्लस 6k क्रॉस 2k। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये यहाँ पे हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इंटू 3i, तो ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। 3j इंटू माइनस 6j, ये हो जाएगा माइनस 18, ओके, प्लस 6k इंटू 2k, ये हो जाएगा यहाँ पे 12। See here, one thing which you have to understand, in case of dot product, I, see here, I dot I, ये जो वैल्यूज है हमारे पास, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, इनका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो ये प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी हैव टू राइट केयरफुली। सो दिस विल बी 6 minus 18, this will be minus 12 प्लस 12। सो ये वैल्यू हमें मिल गया है 0। तो जब यहाँ पे वेक्टर since vector a cross vector b is equal to 0, these two vectors are perpendicular
टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर के लिए मैंने ये साइन, ये सिंबल यूज किया है। सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ पे ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, ओके, सी नेक्स्ट वन। सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी करना है। वेक्टर जो बी है, सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है, पहले वैल्यू हम पुट करेंगे 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो यहाँ पे हो जाएगा 3i इंटू 3i, ओके, देन प्लस माइनस 6j इंटू 2j प्लस 2k इंटू माइनस 3k। जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 6 इंटू माइनस 2 दैट विल बी माइनस 12 प्लस 2 इंटू माइनस 3 दैट विल बी माइनस 6। ओके, तो ये जो -9, पहले वैल्यू चेक करना है हमें। 3i माइनस 6j प्लस 2k, 6i 2j माइनस 3k, 6i 2j माइनस 3 इंटू ओके, सॉरी फर्स्ट जो वैल्यू था वो मैंने यहाँ पे गलत लिया है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, सी हियर, ये जो पहला वैल्यू है 3i इंटू 6i है, 3i इंटू 6i है। तो यहाँ पे भी हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3i इंटू 6i दैट विल बी 18, 18 माइनस 12 दैट विल बी 6 एंड हियर इज 6, सो दिस इज आल्सो 0। तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं, जो वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 0 मिला है। सो दीज टू वेक्टर्स आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसी तरह से आपको अभी वेक्टर a डॉट वेक्टर c का वैल्यू फाइंड करना है और वो भी फाइनली 0 आएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑल दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, so let's see next one. Now problem number 3. See problem number 3. Determine the vector product. Determine the vector product. Determine the vector product of v1 is equal to 2i plus 3j minus k, 2i plus 3j minus k and I plus 2j minus 3k, I plus 2j minus 3k। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी वेक्टर प्रोडक्ट के लिए जो फॉर्मूला है हमारा v1 v2, so here we have to give the vector symbol there, so you can write I j k and here it will be, okay, 2 3 minus 1 1 2 minus 3. So in next step we have to 3 into minus 3 that is minus 9 minus 2 into minus 1 that is minus 2, यहाँ पे आ जाएगा I। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट j के लिए हम क्या करेंगे, ये -1 into 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी
-1 and here is a minus sign. 2 into -3 that will be -6. यहाँ पे हो जाएगा j प्लस k के लिए उसी तरह से हमें फाइंड करना है, तो 2 into 2 हो जाएगा यहाँ पे 4 -3 और यहाँ पे हो जाएगा k. सो -9 इंटू -2, सो यहाँ पे हो जाएगा -9, ये हो जाएगा +2, यहाँ पे i, यहाँ पे -1, ये +6 और ये हो जाएगा 1k. सो बेसिकली -9 + 2 दैट विल बी -7i, इट विल बी 5, यहाँ पे है j, 5j प्लस k. सो दिस इज अवर आंसर. सो इस तरह का प्रॉब्लम अभी हुआ था हमारा. सी नेक्स्ट वन. Number 4. Number 4. So there are two vectors are given. Given v1 is equal to 5i plus 2j, 5i plus 2j. Next one is v2, that is ai minus 6j, ai minus 6j are perpendicular to each other, find value of a. Find value of a. See, when two vectors are perpendicular, then its dot product is 0. इस तरह का अभी हमने प्रॉब्लम लिया था, सेकंड जो प्रॉब्लम था. So here I will write first. Given two vectors are, one is a vector v1 and another one is a vector v2. So write value 5i plus 2j dot ai minus 6j is equal to 0. 0 क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, यहाँ पे दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5i डॉट ai प्लस नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे 2j माइनस 6j. तो इस तरह से हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ax bx प्लस ay by प्लस az bz. ये फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, डॉट मैंने लिखा है. सो 5u इंटू a दैट विल बी 5a. i डॉट i 1 आता है यहाँ पे 2 इंटू -6 दैट विल बी -12. j डॉट j का वैल्यू यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 0. सी हियर, इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, रिमेंबर वन थिंग दैट हियर i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k का वैल्यू क्या आता है, 0 आता, सॉरी 1 आता है. क्या आता है, 1 आता है. ये वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे ये वैल्यू 1 आता है. तो इसलिए यहाँ पे जो ये i है और ये i है, इसका वैल्यू हमें 1 मिला. ये जो j है और ये j है, इसका वैल्यू क्या मिला, 1 मिला. सो 5u इंटू a दैट विल बी 5a. 2 इंटू 6 दैट विल बी -12 बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन आया है. ठीक है. सो इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट 5a minus 12 इज इक्वल टू 0. 5a minus 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ तक अभी हम आ चुके हैं. 5a minus 12 is equal to 0. So this will be 5a is equal to 12. So a is equal to 12 by 5u. So this is our answer. a is equal to 12 by 5u. तो इस तरह से हमने जो वेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व किए हैं. So thank you for watching this video.